ابھی رات ہو گیا ہے، گھر پر ہوں، کچھ سائلنٹ بول رہا ہوں۔ میں سچ کہوں تو ہمیشہ سے چاہتا ہوں کہ ہر چیز اپنا ہو، ہر ایک چیز، کیونکہ میں کہتا بھی ہوں دوسرے کے تانے نہیں سہ سکتا ہر ایک چیز، کیونکہ گھر میں مجھے سچ کہوں تو لڑائی جھگڑے مجھے سچ میں پسند نہیں ہے۔ موم بولتی ہے کہ یہ ہمارا ہے، وہ ہمارا ہے، ہمیشہ بولتی رہتی ہے ہر چیز کے لیے، کوئی چھپا ہو یا برتن کوئی بھی ہو یا کوئی کچھ بھی ہو، بولتی رہتی ہے۔ میں یہ سب تانے سہ نہیں سکتا، سچ کہوں تو مجھے سہنے کا عادت نہیں ہے، نہ ہی کسی کی آواز، کوئی تیز آواز میں بات کر لے مجھ سے تو میں اندر سے گھبرا جاتا ہوں۔ کوئی تیز کبھی میں جب بھی سوتا ہوں تو کوئی جگانے بھی آتا ہے نا، تیز آواز میں بات کر لے، میں گھبرا جاتا ہوں۔ سچ کہوں تو اندر سے گھبراہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ کہہ سکتے ہو کمزوری ہے یا کچھ ہو، بتا نہیں سکتا، لیکن کیا ہی کر سکتا ہوں، بس۔ لیکن یہ چیز بہت کھلتی ہے، کہتا ہوں کہ ہر ایک چیز کو اپنے حساب سے ڈھالنا ہے، زیرو سے اسٹارٹ کرنا ہے مجھے۔ ہر ایک چیز، یا کام ہو، دھندا ہو، کوئی بھی چیز ہو، نہ ہی کوئی کچھ پروسیس ہے کہ کام کرنے کے لیے پیسے ہو یا کچھ اور نہیں ہے میرے پاس۔ کبھی سپنے سجاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ کیا پتا کل رہوں یا نہ رہوں، کچھ پتا نہیں، لیکن پھر بھی کہتا ہوں کہ جب تک رہوں گا تب تک یہ سپنے رہیں گے، نہیں رہوں گا تو بس نہیں۔ ہمیشہ کہتا ہوں کہ خود کا ایک گھر ہو، وہ بھی خود سے کینو، زمین خود کا گھر بناؤ، ہر چیز خود کا، لیکن ہمیشہ چاہتا ہوں، کہتا ہوں کہ اگر لائف دوسرے موقع دے گی تو میں ایسا کروں گا۔ لیکن ہمیشہ ایک افسوس رہتا ہے، کبھی راہ تک رہ جاتی ہے، کہتا ہوں کہ اس دن ایسا لگا کہ سامنے موت کھڑی ہے، پیچھے سے رہا نہیں تو ایسے تو دو تین بار ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے۔ مجھے سکون ملتا ہے، کہتا ہوں کہ جلدی کر، اتنا دیر کیوں؟ میں سچ کہوں تو جتنا بیماری سے نہیں تھکا ہوں جی، اتنا اس زندگی سے تھک گیا ہوں، کیونکہ ہر کسی کے تانے اور ہر چیز سہنے کی چھمتا نہیں ہے مجھ میں، سچ میں۔ ہر دم کی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز سے لڑتا رہتا ہوں، کبھی کوئی کام کے لیے، کوئی کام کے لیے، ہمیشہ خود کو بلیم ٹھہراتا رہا ہوں کہ میں ایسا کیوں نہیں ہوں ہر ایک چیز کے لیے۔ خیر، افسوس تو ہے
دیکھو جانا تھا، سوچ رہا تھا کہ باہر جاؤں گا تو کچھ پیسے کما لوں گا. کبھی کہتا ہوں کہ آخر پیسے کماؤں گا تو ماں باپ کو دوں گا. تو دیکھو میں نے چھٹ میں اور دسہرہ میں کمایا تھا. میں جانتا ہوں یہ چیز کہ اگر مام ڈیڈ کے پاس پیسے رہیں گے تو خرچے ہو جائیں گے. خود کے پاس رہنا چاہیے، میرا ماننا ہے سچ کہوں تو. کیونکہ سمے کے ساتھ پیسہ ہونا چاہیے. آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں. بس پیسے ہوتے تو کیا ہی بات تھی. ایک ٹھیلا بنواتا اور اس پر سوچ رہا تھا بس بزنس کرنے کے بارے میں. ہر روز رات کو سوچتا ہوں، کہتا ہوں آخر کیسے. بتا نہیں سکتا کہ آخر کیسے. ایسے ہی اتھل پتھل چلتی رہے گی یا کچھ اور ہوگا. کہتا ہوں، کبھی کہتا ہوں ہار مان جاتا ہوں. کہتا ہوں کہ نہیں ہو پائے گا تم سے. ہار جاتا ہوں خود سے. کیونکہ سچ کہوں تو سمے نہیں ہے میرے پاس. جوانی ڈھل رہی ہے. سچ کہوں تو میں بس سچ کہوں تو دیکھ سکتا ہوں. بس ہمت نہیں جٹا پا رہا ہوں پھر سے کہ آپریشن کروں. سچ میں ایک اندر سے ڈر بیٹھ جاتا ہے. کہتا ہوں کہ کیسے آخر اپنے ہی شریر کو کاٹنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن کیا کروں، دیکھنا ہے. کیا پتا جیون اس کے بعد جیون جینے کا ایک موقع مل جائے. اس کے لیے کبھی کہتا ہوں کہ اس زندگی کا کیا فائدہ. آخر جی کر کیا کرے گا تو. بس کچھ چاہتے پوری کروں گا، کچھ سپنے ادھورے سے ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کروں گا. سب ہر ایک چاہتے اب دھندلی سے دکھائی دے رہی ہے. کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں سمے کو بدلتے ہوئے. ہر ایک چیز سمے کے ساتھ بدل رہا ہے. لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا. ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ سمے کے ساتھ ہر انسان کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں ہمیشہ. لیکن مشکلیں ہمیشہ سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. پھر رک جاتا ہوں. کہتا ہوں کہ چل پھر سے شروعات کرتے ہیں، غلطی ہو گیا. ایسے پھر کہتا ہوں کہ اگر ایسے چلوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی. راستے میں ایک دیر ہو جائے گی. کیا پہنچ پاؤں گا اپنے منزل کی طرف. کہتا ہوں کہ پھر کہتا ہوں کہ چل خود کو پہلے ٹھیک کر، اس کے بعد دوڑ لگانا. بس ایسے ہی. پہلے کیا تھا، 2 سال پہلے، 2 ڈھائی سال پہلے تھا. ہر کوئی مان کر رہے تھے مجھے. کیونکہ میں
जानते थे कि हाँ इससे तकलीफ है। वो ब्लडिंग वाला मैंने बताया था घर पर, तो उसके लिए काम नहीं करने देते थे, बोझा या भारी सामान कोई नहीं उठाने देते थे। लेकिन अब देखो, हर कोई समय के साथ हर कोई बदल जाता है, मैंने ये जाना। अब हर कोई कहता है कि ये काम वो भारी उठा ले, ये उठा ले, वो उठा ले, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। बस हर किसी को सुनता रहता हूँ। देखो सुबह सुबह पड़ोस वाले बोल रहे थे कि काम नहीं करता है तुम्हारे पापा, कब से काम कर रहे हैं, तुम बड़ा बेटा होकर के काम नहीं करता है। क्या करूं, जवाब तो है मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब दे नहीं सकता उनको, क्योंकि जवाब देने का क्या फ़ायदा कि लोगों के पास कोई सलूशन नहीं है। क्या इस जवाब से कोई सुकून मिलेगा? नहीं, बस अंदर ही अंदर तकलीफ होगा और लोग हंसेंगे। मैं जानता हूँ लोगों के बारे में। जानते हो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ी ज़्यादा बोलती है, गाली गलौज करती रहती है। मुझे सच कहूँ तो अच्छा नहीं लगता है, क्या करूँ, मेरी मम्मी है, मैं बोल नहीं सकता किसी के बारे में भी, खासकर मम्मी पापा से हिम्मत ही नहीं होती है कि मैं बोलूँ उनसे कि हाँ ये बात वो बात। कोई भी बात बोल दे तो टांग नहीं अड़ाना चाहता मैं। कहता हूँ खैर, मैं हर चीज़ खुद का बनाऊँगा मैं। देखो अब आगे लाइफ में क्या होता है। बस अभी सोया हुआ हूँ, बस दिन को मैं अच्छा वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि माइंड फ्रेश नहीं होता है। कहीं कहीं की बातें, कुछ कुछ बातें चलती रहती है, थकान हो जाती है। सच कहूँ तो दिन को अच्छा नहीं लगता बनाते हुए, लेकिन बना लेता हूँ थोड़ा बहुत। बातों से लग रहा होगा कि कुछ खास नहीं है। बस कुछ कुछ सालों पहले मैं किसी और के लिए एक जीने के तरीके को बदल रहा था कि लोग कैसे जिएंगे। करोड़ों सवाल थे मेरे मन में, ईश्वर के प्रति, हर चीज़ के प्रति, कि आखिर क्यों। इस क्यों का सवाल बहुत बहुत बड़ा है, मैंने जाना ना ही किसी के पास नहीं है। ऐसे ऐसे सवाल थे मेरे मन में। समय के साथ मैं पहले गाना हो, वीडियो हो, हर चीज़ से मैं भागता रहा और बदलने की कोशिश करता रहा। लेकिन देखो अब जीने की कोशिश करता हूँ, उस चीज़ में डालने की कोशिश करता हूँ। कहता हूँ कि यही ज़िंदगी है, जी और इस चीज़ को सुन, हर एक चीज़ को। कुछ कर नहीं सकता, बस मैं कैसे कैसे अब ज़्यादा नहीं होता है, क्रोध नहीं आता है गाने और वीडियो पर, हर एक चीज़ पर। पहले से बहुत कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा था।
मैं कहता था कि आग लगा दूंगा इसके लिए, आज देखो हर एक नफरत और हर एक चीज़ दब रही है। और उसी सिचुएशन में ढल रहा हूँ। लोग जैसे चाहते हैं कि एक इंसान जिए एक दूसरे को, मैं उसी लोगों की तरह मैं भी बन रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ, सच कहूँ तो मैं औरों से अलग हूँ। हर एक चीज़ में लोगों के सपने होंगे कि ये करना है वो करना है, मुझे बस लोग बस सुकून से जिए वही चाहता हूँ। मेरे सपने कुछ अलग है, हर इंसान से कर सकते हो। कोई पूछता है कि तुम्हारा गोल क्या है, क्या मैं बताऊँ कि मेरा गोल क्या है। कोई बात को सच कहूँ तो मानेगा नहीं कि मेरा गोल क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में। किसी से हंस कर बोल देता हूँ कि मुझे इस कानून को अपडेट करना है, तो दोस्त हंसने लगते हैं। मजाक मजाक में बोल देता हूँ, हंसने लगते हैं। मुझे भी हंसी आ जाती है, कहता हूँ कि मैं ही साला पागल हूँ जो इन सब बारे में इतना कुछ सोचता हूँ। लेकिन क्या करूँ, ये तकदीर बोलो या फितरत बोलो, फितरत में ऐसी है जो ऐसे चीज़ को सोच पाता हूँ। ज़्यादा कुछ मुझे नहीं आता है, जो दिमाग में आता है उस चीज़ को मैं कहता हूँ बस। लेकिन सच तो ये भी है कि ये सपने कभी सच नहीं हो सकते। मैंने कितने सपने तोड़ा है, एक सपनों के शहर में जिया है मैंने, ऐसी जीवन देखी है। उससे ज़्यादा क्या मैं बताऊँ। जीते जीते बस हर एक चीज़ को भूलने की आलसी हो गई है। कहता हूँ कि नहीं, कोई अच्छी भी ख्वाब आती है तो कहता हूँ कि नहीं ये गलत है, तुम्हारे बस की बात नहीं है ख्वाब पूरा करना। फिर शांत हो जाता हूँ, कहता हूँ कि छोड़ो, जब तुम्हारे बस की बात नहीं तो नहीं कर सकता तो अब बस कहता हूँ कि अब आम लोगों की तरह जीना है, नहीं बड़ा बनना है। बस जो हूँ सो हूँ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक ये चल रहा है तब तक चल रहा है। किसी से कोई मांग भी नहीं रख सकता कि नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मैं हमेशा से एक बोल सकते हो सपने तो बड़े बड़े लेकिन करना में छोटे छोटे कह सकते हो। सपने देखता हूँ कितना कि बता नहीं सकता। मुझे में सच कहूँ तो मुझे छोटे सपने आते ही नहीं है, सिर्फ बड़े सपने देखता हूँ। कहता हूँ कि ये छोटी चीज़ से मुझे खुशी ही नहीं मिलती है। सच कहूँ तो मैं बड़ा बड़ा चीज़ सोचता हूँ। दोस्तों जब मैं बातों को मिलाता हूँ और कहता हूँ कि ये गाड़ी कितने की मिलेगी, तो कहेगा कि मेरे बस की बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि मुझे यही चाहिए, और मस्ती मस्ती में बोलता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो चाहते बस यह
पूरे नहीं हो सकते। अब मैं भी मानने लगा हूँ, बस ये ख्वाबों में सोच होते हैं, हकीकत में नहीं। क्योंकि पूरा करने के लिए अब हिम्मत और जज्बा नहीं रही शरीर में। शरीर तो बस लोग कहते हैं कि दिखावे के लिए शरीर रखा है, काम कुछ नहीं करता है, ऐसा ही समझ लो। अभी देखो और रात हो गई है, जाऊंगा सोने के लिए बस। बस 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 रातें थोड़ी लंबी है बस, और कुछ नहीं। सपने भी बड़े हैं, सोचता हूँ तो अपने खुद पर हंसी आती है। कहता हूँ कि जो पूरा नहीं हो सकता उसके बारे में क्या सोचना, लेकिन क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ। हर वक्त सोचता रहता हूँ कुछ ना कुछ बड़े। हर किसी से सपने से अलग। मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं सोच सकता, होंगे सोचने वाले, उनमें से मैं भी हूँ सोच रखने वाला। बस देखना ये है कि लाइफ से कि बस जिंदगी दोबारा जी पाता हूँ कि नहीं, बस देखना ये है। मैं जानता हूँ कि शादी विवाह तो नहीं होगा, नहीं कर पाऊँगा मैं। अगर आएगी भी तो छोड़ के चली जाएगी, मैं ये चीज़ जानता हूँ। नहीं बच्चे होंगे, झगड़े लड़ाई होंगे, लेकिन क्या करूँ, मैं भी सच कहूँ तो अकेला रहना नहीं चाहता हूँ। ऐसे जैसे पूरी लाइफ काटी मैंने गुमनामी में, ऐसे नहीं रहना चाहता हूँ। क्या करूँ, लेकिन आया हूँ तो कटना तो पड़ेगा ही, जैसे भी कट जाए बस। कट रहा है हर दिन एक। हाँ ये सच है कि ये करना है तो जल्द कर, नहीं तो कुछ और कर। बस कहाँ से मैंने शुरुआत किया था, पहले बहुत शुरू में हुआ था नाइट फॉल्स। तो मैं कहता था कि बस प्रैक्टिस करता रहा, कोशिश हार मत मान। एक बात की जीत थी मुझे, हार मानना मैंने फितरत में सीखा ही नहीं। बस कोशिश करता रहा अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। हर एक चीज़ को कंट्रोल किया मैंने, कंट्रोल किया नहीं, कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा। दिन ढले, वक्त भी गिरे, हौसला भी ख़त्म हो गया, हिम्मत ख़त्म हो गया। अब पहले वाली जज्बात नहीं कि अब सोच सकूं कि फिर से खड़ा होना है। बस एक सामने बस खड़ा हूँ, बस एक हारा हुआ इंसान, और कुछ नहीं। एक जीवन से एक हारा हुआ इंसान लाइफ में नहीं बन सकता है,
ना ही एक उठने का ताकत रख सकता है कि उठ करके कहीं जाए घूमने के लिए। इसी को लोग कहते हैं जिंदगी। क्या मिलती है इससे, इस चीज़ से? मैंने एक चीज़ देख, बस दिमाग की बस वे है, मैं बोल सकते हैं कुछ और। मैंने देखा कि देवताओं ने दिया बस एक जीने के तरीका, और बस किस्मत खुद से नहीं लिखने का मौका दिया। बस कर सकते हो, होना ना होना उसके हाथ में है, क्योंकि पहले से लिखा हुआ है। उस चीज़ को मिटा नहीं सकते। मैंने ये जाना इस जीवन में। मैं हर एक चीज़ को करने की कोशिश करता हूँ। जब कुछ सालों में हार जाता हूँ तो कहता हूँ कि तुम्हारी किस्मत में था ही नहीं, कैसे मिल जाता। वही वाली बात है। बस एक किसी और के कठपुतली हैं, बस नचाए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि क्या फ़ायदा इसी जीवन की जो किसी और के हाथ की कठपुतली हो। मैं चाहता हूँ कि आज़ादी से जियो, लेकिन सच कहूँ तो कोई इस जीवन के बाद कोई पूछे कि तुम्हें दूसरा जीवन चाहिए, मैं सच कहूँ तो ना ही बोलूँगा मैं, क्योंकि इस जीवन ने इतना कुछ मुझे सिखा दिया है। दोबारा जन्म नहीं लेना चाहूँगा। क्या क्या मैंने झेला है, मेरा बस रूह जानता है। कोई क्या जानेगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मतलब पहले चाहत थी कि ऐसा पार्टनर मिले जो मुझे समझ सके। तब ये अब ख्याल आता है कि बस ये ख्वाबों में ही सच होता है, हकीकत में नहीं। जो हर एक इंसान, में जानता हूँ ये बात, हर इंसान की हर चीज़ नहीं मिल सकती। मैं कहता हूँ कि बस एक चीज़, बस एक इंसान की फीलिंग को समझे, बस इतना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। पहले कहता था, आज भी कहता हूँ सच कहूँ तो, लेकिन वक्त के साथ सब चीज़, हालात, हर एक चीज़, लाइफ पार्टनर के बारे में सोचता। पहले हर एक इंसान को देखता था, कहता था कि इसके जैसा पार्टनर चाहिए, उसके जैसा चाहिए। हमेशा सालों मैंने बर्बाद किए रोड पर ताकते हुए, गलत निगाह से नहीं, अच्छे निगाह से, कि मुझे इसके जैसे एक लाइफ पार्टनर चाहिए। लेकिन अब कुछ नहीं है। अब मैंने मानना शुरू कर दिया है, जो है तू है बस, और कुछ नहीं। सामने कौन खड़ा है, कौन क्या कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू क्या कर रहा है वो फर्क पड़ रहा है। बस थोड़ी सी माइंड, थोड़ी सी, हाँ, बातें करने से थोड़ा मन हल्का हो जाता है। हाँ, सही है। जीवन भर का तकलीफ, बस कोई कहे कि एक ही लफ्ज़ में बता दे बस, कि मैं बस उससे इतना कहूँ कि बस मुझे तकलीफ़ है, इतना कि मैं बता नहीं सकता। इतना ही कह सकूँगा उससे, और आगे कुछ नहीं कह सकता। कोई पूछेगा अगर तो
کہ ایک لفظ میں کیا بتانا چاہوگے؟ بس یہی جواب دوں گا میں، بس کہ میں جی نہیں پا رہا ہوں اس کی وجہ سے۔ خیر، سوچتے سوچتے تو سمے نکل ہی گیا۔ بس یوں ہی میں ایک بار جانتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ ہر ایک چیز نردھارت ہے، کچھ ہوتا کیوں نہیں ہے۔ ہاں صحیح ہے کہ کرم کرنا پڑتا ہے۔ چلو بس آج کے لیے اتنا ہی، کافی رات ہو گیا، جا رہا ہوں سونے کے لیے۔ آواز میں مانتا ہوں کہ آواز تھوڑی کٹ کے آ رہی ہوگی یا دھیمی آ رہی ہوگی، میں مانتا ہوں، اس کے لیے سوری، معافی چاہوں گا آپ سب سے۔ کوئی سنے گا اگر تو، اگر ایسے بھی کوئی سننے والا اتنے منٹ کے ویڈیو ہوگا نہیں، میں مانتا ہوں، بس شوق کے لیے بنا لیتا ہوں، ایک سکون کے لیے، بس سکون دل میں مل جائے وہی بڑی بات ہے میرے لیے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔